Hello, my dear students. Welcome to my class. Today we are going to start with a new chapter. The chapters belong to economics, that is money and banking. Chapter one. It is one of the important chapter for by students. I'll try my best to explain everything in a very easy way so that everybody could able to understand it. It is a very interesting chapter, that is money and banking. So we'll discuss each and every paragraph. We'll go through each and every paragraph. We'll try to understand what is there in the chapter. Okay. This chapter is mostly dealing with the evolution of money, how money exists, what is the role of money in the present era, how it comes through, किस तरह ये आया, किस तरह इसका evolution हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ज़्यादातर आज इसको किस तरह यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, और किस तरह का मनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी आर देयर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मनी का फंक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे, उसका रोल के बारे में पढ़ेंगे, एंड इट्स डिसएडवांटेज. ओके सो एज यू ऑल नो, मे बी यू हैव हार्ड समवेयर, अगर किसी ने नहीं बताया होगा, शायद आपने कभी सुना होगा कि before the evolution of money there was a barter system. So that is the beginning of this chapter. So what is barter or barter, barter, BARTER. Okay, before that there is a thought written by Anna Lepp, and what is that? Every time you spend money you are casting a vote for the kind of world you want. That means every time when you spend your money, जब हर समय जब पैसा खर्च करते हो, दैट मीन्स व्हाट, यू आर कास्टिंग ए वोट फॉर काइंड ऑफ वर्ल्ड यू वांट. मतलब आप किसके लिए खर्च कर रहे हो, किसके लिए, दैट यू आर एक्सेप्टिंग ए वर्ल्ड यू वांट. मतलब जिस तरह का आपको ये दुनिया चाहिए उस तरह का आप बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, इसके वजह से आप पैसा खर्च कर रहे हो. आप लोगों को मतलब उस तरह का दुनिया चाहिए, तो इसीलिए आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या खर्च कर रहे हो. उसी को बोला गया है every time you spend money you are casting a vote for the kind of world you want. Okay, that is Anna Lepp. Okay, now we'll start in the beginning. That is, what is barter? As per this paragraph, barter is a direct exchange of commodity against commodity. No individual is self-sufficient. No individual can produce all goods and services that individual need to satisfy various ones. Therefore, individuals are interdependent. So, barter system क्या है? Direct exchange of commodity against commodity. It is a direct exchange of commodity. Directly, if you are exchanging something directly with another commodity, that is a commodity against commodity. That means you are exchanging something with commodity against commodity. That is a barter system. Okay, at that point of time there is no evolution of money, so people used to use commodity as a money. People used to use goods. commodity मतलब क्या, चीज़ें, goods ना, goods को ही use किया जाता था as a money, and goods are used as a medium of exchange. So barter system is a what? Direct exchange of commodity against commodity. सो उस समय क्या था, नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट, और अभी भी नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट. नो इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इंडिविजुअल नीड टू सेटिस्फाई वेरियस वंस. सो कोई भी इंडिविजुअल हर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया जा, मतलब नहीं कर पाएंगे वो अकेला. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ईच गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, टू सेटिस्फाई वेरियस वंस, क्योंकि वंस हमारा अनलिमिटेड है. इकोनॉमिक्स में बोला गया है वंस अनलिमिटेड है. वी हैव अनलिमिटेड ऑफ वंस. वी आर नेवर बीन व्हाट यू कैन से सेटिस्फाइड. आज अगर किसी को सिंपली अगर देखो ना, आज आपने कोई मोबाइल ले लिया, आज लिया होगा 10,000 का, कुछ महीनों बाद आपको 20 का चाहिए, फिर 40 का, फिर तो आजकल तो एप्पल तो है ही. किसी के लिए कोई तो किडनी भी मतलब रील्स में दिखाई पड़ता है ना, किडनी भी बिक्री करने से एप्पल का फ़ोन लेंगे, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि उसका वंस कभी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है. सिंपली मतलब इंडिविजुअल वन आज के ज़माने में और पहले भी वंस कभी सेटिस्फाई नहीं था. सो वी हैव अनलिमिटेड वंस. सो अनलिमिटेड वंस को फुलफिल करने के लिए हम हर चीज़ अपने से प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नो इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इंडिविजुअल नीड्स. इज इट नॉट पॉसिबल. वी आर डिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट. हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो इसी इंटरडिपेंडेंस के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, इट स्टार्टेड द barter सिस्टम. ओके,
how it goes. See, individual A, there is an example here. Individual A produces rice but does not produce sugarcane. Individual B produces sugarcane but does not produce rice. Individual A depends on B for sugarcane. Individual B depends on A for rice. There is a direct exchange of two commodities. जिस तरह इसमें काफ़ी easily बताया गया है, ए और बी के बारे में बताया गया है. ए प्रोड्यूस करता है राइस बट शुगर कैन नहीं प्रोड्यूस करता है. बी प्रोड्यूस करता है शुगर कैन बट राइस प्रोड्यूस नहीं करता है. इसके वजह से ए और बी को अपने एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है. दैट मीन्स दे हैव टू इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर. सो उसी को बोलेंगे देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ टू कमोडिटी. दैट इज वन इज राइस एंड शुगर कैन बिटवीन ए एंड बी. ओके. What is true of individual is also true of country. Lack of self-sufficient leads to interest. ये जो सिंपली हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस दिखा रहा है. सिंपली जैसे एक इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, उसी तरह कंट्री भी, हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट. कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं, हर चीज़ खुद से नहीं कर पाते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल to have every resources within the same country, and that is why they have to depend on one another. That is what we call as interdependence of country. इसीलिए international relation काफ़ी important है. देश के बीच जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा रखना एक कंट्री के लिए दूसरे कंट्री के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको भी पता है और हर किसी को पता है कि आज के ज़माने में कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. दे हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर. दैट इज इंटरडिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कंट्री. एंड इंडिविजुअली वी आर ऑल्सो interdependent. Hope you have understood this paragraph. Okay, shall I go to the next? Okay. Disadvantage. So what is barter system? We understood that is direct exchange of commodities called barter system. So what are the disadvantages? Okay. At the dawn of civilization, the barter system did not have any serious problem. Population was less, life was simple, wants were few. हाँ, during the very early period, ठीक है, अर्ली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम में शायद कोई प्रॉब्लम दिखाई उस समय नहीं दिया था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही कम था, लाइफ वाज सिंपल, लोगों का ज़्यादा वंस उस समय मतलब था, वंस तो था लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आज है. सो लाइफ वाज सिंपल, वंस वेयर फ्यू. हाँ, सो ज़्यादा प्रॉब्लम उस समय दिखाई नहीं पड़ रहा था. लेकिन जब जैसे दुनिया डेवलप हुआ, जैसे मार्केट फ्लोराइज, दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम. क्योंकि उस समय मार्केट भी स्मॉल था. बट एज द टाइम्स गोज ऑन, प्रॉब्लम इमर्ज इन बार्टर सिस्टम. जब टाइम्स मतलब और चलते गए, दिन प्रतिदिन चलते गए, दिन बीत गए, देश में नए चीज़ आने लगे, तो बटर सिस्टम का प्रॉब्लम दिखाई पड़ा. देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन बटर सिस्टम. Okay, what are the four major? So there will be a question come that what are the problems of butter system? There are four major disadvantages of butter system. So there are four major problem in butter system. Firstly, I'm going to start with the first one. First, the butter system. Wait a minute, just a minute. Okay. First, the butter system does not work when there is a lack of double coincidence of ones. So what is lack of double coincidence of one? मैं थोड़ा सा easily समझाने का कोशिश करता हूँ. Before I start reading, let me explain it. So what is double coincidence of one? Suppose think like that you are in an era of butter system. आप एक ज़माने में हो जहाँ butter system है. वहाँ में क्या प्रॉब्लम आ सकता है? Suppose मान लीजिए किसी एक को चाहिए चावल, राइस, एंड किसी को चाहिए दाल. दैट मीन्स हम लोग जो दाल खाते हैं या कई प्रकार के दाल होते हैं, तो मान लीजिए किसी को चाहिए दाल और किसी को चाहिए चावल, दैट इज़ राइस. किसी के पास है, मतलब ए के पास राइस है और बी के पास मान लीजिए दाल है. यहाँ में भी दिया गया एग्जांपल, मैं अपने से बता रहा हूँ. अब ऐसा है कि ए को ना राइस तो बिक्री करने का मन है, राइस तो देने का मन है, राइस ही वांट टू एक्सचेंज द राइट, बट नॉट इन अगेंस्ट ऑफ दाल. ठीक है ना, नॉट इन अगेंस्ट ऑफ, उसको दाल नहीं चाहिए, उसको मतलब राइस तो एक्सचेंज करना है लेकिन उसको दाल नहीं चाहिए. तो उस समय एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी को राइस चाहिए
लेकिन राइस के बदले वो देने के लिए तैयार है दाल, क्योंकि उसके पास है ही वो। अब अल्टीमेटली ए को बिक्री करना है राइस, लेकिन उसको दाल नहीं चाहिए, उसका वो वांट्स नहीं है मतलब। सो यहाँ क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इधर मैंने हियर सिंपली अगर समझो, हियर बोथ द पार्टी हैव टू एग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटी। यहाँ बोथ द पार्टी, बोथ ए एंड बी हैव टू एग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटी। अगर कोई भी एक इनकार करता है तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया है, ए हैज़ राइस। see if you see this, when I explain, I request to take out your book so that you can able to look after that. So okay, now see, suppose A has rice and C needs sugar cane, A need sugar cane, okay. B has sugar cane but B need rice, so there will be exchange between A and B, and it is simple formula. But when the problem arises, when B for example need fish which A does not produce, because A produce rice, okay, and B need what, fish. Now again you suppose C produces fish but she does not want sugar cane, but B has sugar cane, but C does not produce, C produce fishes but she does not need sugar cane. So here exchange of commodity is not possible. That is the lack of butter, a double coincidence of wants. Okay, getting my point? You can't exchange any commodity with any commodity if the party did not agree to buy and sell. So here both the party have to agree to buy and sell each other commodity. If not, though it was not possible to have an exchange. That is a lack of double coincidence of wants. Getting my point? Yes or no? Okay. And see, secondly, the barter system like a common unit of account. The value of each commodity has to be expressed in the term of value of another commodity. Yes, common unit नहीं है, मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू किसी एक चीज़ का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ उस समय इसको किसी के तहत मतलब एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 apple is exchanged against 3 guavas. See, 1 apple is exchanged against 3 guavas. Similarly, for other commodity to be exchanged in a market, it is impossible for consumer to keep in mind innumerable rates of exchange. Money economy replace the barter economy and remove this problem. Money become the common unit of account. The value of each commodity in the market is expressed in terms of money. In fact, value in exchange is the price of the commodity. Yes, that is the problem in barter system, that we does not know that with what value we will able to exchange the things, because something has more value, some has less value. Okay, for exchanging something we need more of that. Okay, किसी के साथ किसी को एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए, मतलब एक नॉर्मल यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है वैल्यू ऑफ अकाउंट। सो दैट इज़ ए प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? मनी इकोनॉमी ने। मनी रिप्लेसेस बार्टर सिस्टम एंड रिमूव दिस प्रॉब्लम। ओके, मनी बिकम्स कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, और आज के मार्केट में हर चीज़ को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया गया है? थ्रू मनी। इसलिए देयर इज a difference of price. There is a difference of price. The price of a chocolate is different. The price of a packet of a chips is different. The price of any goods you buy, electronic goods or any good, is different. Why? Because it is expressed in terms of money. Money give them value. Okay, and that is possible during the money economy. Earlier it was not possible. Hope you have understood. Thirdly, the barter ceases to operate when commodity are indivisible. Can the elephant be exchanged against a piece of bread? The value of piece of bread is low and the value of elephant is high, but the elephant is not divisible. The money economy removed the problem of indivisibility. Money is divisible,
Money can settle every small value transaction. A 1,000 rupee note can be converted into 500 rupee note, 500 rupee note into 100 notes, and so on the right down to small coins. The required amount of money is available for every transaction, be it high value or extremely at low value transaction. बहुत ही इजी तरीके से बताया है. थर्ड प्रॉब्लम बटर सिस्टम पे था, वो क्या था कि you can't exchange any commodity with any other commodity. That means it is not possible because commodity lacks what? Divisibility. Commodity lacks what? Divisibility. Commodity को आप divide नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. Commodity are indivisible. Commodity means goods are indivisible. So for an example, can be the elephant be exchanged against a piece of bread? क्या एक piece of bread आपको चाहिए, उसके अगेंस्ट अगर आप एलिफेंट आपके पास एलिफेंट है तो आप क्या उसको बटर सिस्टम के थ्रू कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप कैसे आप एलिफेंट को एक पीस ऑफ ब्रेड के साथ एक्सचेंज करोगे? इट इज जस्ट आउट ऑफ द माइंड, बिकॉज एलिफेंट कैन बी डिविजिबल. द वैल्यू ऑफ एलिफेंट इज वेरी हाई in comparison to the piece of bread. Piece of bread value is very low. The value of elephant is very high. So and also that elephant can't be divisible. So that is a problem. हाथी को आप तोड़ के तो मरोड़ के तो टुकड़े पे तो नहीं कर पाओगे ना. आपको पीस ऑफ ब्रेड चाहिए, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है. Isn't it? Not divisible. ये एक प्रॉब्लम है उस समय बटर सिस्टम में. ये एक प्रॉब्लम था क्योंकि है एलिफेंट का जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई है, पीस ऑफ ब्रेड का वैल्यू वेरी लो है. तो उन दोनों के बीच एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ही ना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एलिफेंट को आप टुकड़े करके आप डिविजिबिलिटी फॉर्म पे नहीं ला सकते हो. लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसी ने? मनी ने. मनी रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी. मनी remove the problem of indivisibility. Economy remove the problem of indivisibility. Money is divisible. money को आप divide कर पाओगे. Okay, money can settle every transaction. money के द्वारा आप कई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो. आजकल तो ऐसा दिखाई पड़ता है कभी कभी जब आप किसी नॉर्मल शॉप पे घुस जाते हो, ठीक है ना, जो फुटपाथ में शॉप होते हैं, वहाँ पे अगर कहीं आप छोटे वैल्यू का कोई भी चीज़ आपने ले लिया जिसका प्राइस बहुत ही कम है, मान लो 1-2 रुपया, वो भी आप दे पाते हो विद द हेल्प ऑफ UPI, इजंट इट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. ठीक है ना. तो मतलब इससे क्या बताता है कि मनी को डिवाइड किया जा सकता है, जितना है उतना दे सकते हैं. मनी इज डिविजिबल. दैट मीन्स very small transaction also could be done with the help of money. Okay, suppose an example, a 1,000 rupee note can be converted into 500 rupee note, 500 rupees note into 100 rupee note, and so the right down to the small coin also. So because it is a divisible. Okay, that means the required amount of money is available for every transaction, be it high value or extremely low value. That means with the help of money you can able to do any kind of transaction. It can be high also, it can be low also, because money is divisible, and money remove the problem of indivisibility that was there in what? That was there in barter system. Hope you have understood. And the last disadvantage of barter system, that is fourthly, the barter system lack the store of value of goods and services. Value is stored up in the sense that commodity are stored up, so that the stored up commodity may be exchanged against another commodity as and when such a transaction is required to take place. But the problem is that commodity are perishable. Some perish earlier, example egg, fish, milk, and others somewhat like egg, example cloth, right, etc. Isn't it? इसमें क्या बताया गया है? देखो, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आप बाद में यूज़ करने के लिए या बाद में जब ज़रूरी होगा तब उसको यूज़ करने के लिए आप ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हो. गुड्स को आप ज़्यादा देर तक, कमोडिटीज़ को आप स्टोर नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. मान लीजिए आज आपका फार्म है, फार्म के द्वारा आपने एग प्रोड्यूस किया है जो कि आज आपको यूज़ नहीं करना है. मान लीजिए आपको इसको 3 मंथ के बाद यूज़ करना है, क्योंकि तब ज़रूरी पड़ेगा, जिसको आपको पता है. ठीक है ना. लेकिन आप 3 मंथ एग को
उधर रखना, स्टोर करना, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ए पेरिसेबल कमोडिटी. पेरिसेबल मतलब यहाँ चीज़ खराब होते हैं, खराब होने का चांस होता है. हाँ, कुछ जल्दी और कुछ थोड़ा देरी पर. isn't it? Some perish earlier and some later. क्या जल्दी खराब होता है? That is egg, fish, milk. क्या थोड़ा थोड़ा देर में? That is cloth, rice, etc. ओके. और एक समय के बाद बियॉन्ड ए पॉइंट ऑफ टाइम कमोडिटी कैन नो लॉन्गर बी स्टोर्ड अप. और एक पॉइंट के टाइम किसी चीज़ को भी स्टोर्ड अप नहीं किया जा सकता है. इसके वजह से बटर सिस्टम में जो सेविंग का जो प्रॉब्लम है वो है. स्टोर का जो प्रॉब्लम, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, यू कैन स्टोर, यू कैन सेव, you can save in butter system so that you can use it whenever you need. ये possible नहीं है because saving को किस तरह करना पड़ता है on the form of commodity, और जो कि possible नहीं है क्योंकि commodity का क्या होगा, स्टोर वैल्यू एक ना एक बार ख़त्म हो जाएगा. मतलब उसको स्टोर ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता है गुड्स को. इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन मनी इकोनॉमी ने इसको सॉल्व कर दिया बिकॉज मनी इज ड्यूरेबल. ड्यूरेबिलिटी का अर्थ आपको पता होगा, मतलब एज लॉन्ग एज यू कैन, ये खराब नहीं होने वाला है. मनी इकोनॉमी ने इसको सॉल्व कर दिया. आप जितना देर चाहो उतना आप सेव कर सकते हो, उतने दिन तक सेव कर सकते हो. यू कैन स्टोर, यू कैन सेव एज मेनी डेज एज यू वांट. सो मनी रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स. It can be stored up as long as you can. Okay, and that is why saving can be only possible with the help of what? Money. With the help of or in the form of money. It can be kept, an individual can keep this money in bank as well for longer period of time. Or and whenever he necessary he can withdraw that money. Isn't it? Yes or no? So that is the another problem of butter system which has been removed by money economy. So these are 4 disadvantages. ये 4 disadvantages था butter system का. Hope you have understood. Now we'll go to the next part. मैं पहले बता देता हूँ कि इस लेसन को हम 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. डिपेंड करता है कितना बड़ा चैप्टर है. चैप्टर तो मैंने देखा हूँ कुछ पेजेस तो है, लेकिन मुझे शायद 3 पार्ट्स में ख़त्म करना पड़े क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा भी मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि इससे कन्फ्यूजन भी कई क्रिएट होते हैं. थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि एवरीथिंग को अच्छे से समझे. इजंट इट? सो दैट विल बी मोर easy way to understand this chapter. So next is evolution of money, a brief account. So money किस तरह आया, evolve कैसे हुआ, किस तरह मतलब डिफरेंट फॉर्म यूज़ हुए, और उसके बाद फाइनली पेपर मनी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उस वो आया. सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं इन ए सीक्वेंस. ओके, सो पहला जो था हमने आज बात किया वो हो गया बटर सिस्टम. इट इज़ द फर्स्ट स्टेज, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. एंड उसी समय बटर सिस्टम इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड कमोडिटी आर यूज्ड एज मनी इन दिस बटर सिस्टम. इट इज़ ट्रू दैट there was no use of money in the butter system, but there was a commodity money, as commodity act as a medium of exchange. However, butter system broke down because of its inherent deficiency, isn't it? So butter system में डायरेक्टली तो मनी का यूज़ नहीं किया गया है, कमोडिटी का यूज़ किया गया है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज प्रोसेस में कमोडिटी रोल प्ले करता है मनी का रोल, और उसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला गया है. लेकिन बटर सिस्टम कई मतलब उसको चेंज करना पड़ा. बटर सिस्टम कई मतलब कुछ सालों बाद वो चलना बंद हो गया. बटर द वे बटर सिस्टम वाज देयर, उसको रोकना पड़ा. ठीक है, सोसाइटी ने फॉर्म ऑफ मनी को डेवलप किया. और क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे प्रॉब्लम थे जिसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर पेजेस. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ मनी. सेकेंड इज द animal standard. What is this? So in this stage the animal
were used as money. Animal were used as money. Okay, that is why period is called, or this stage is called animal standard. Mostly goats were used as a medium of exchange. लेकिन इस evolution of money में, इस stage में two serious difficulties are there, or you can say problems are there. First, the animal used as a medium of exchange were not homogeneous. Suppose homogeneous means similar, एक तरह का नहीं होता है. जिस एनिमल्स को यूज किया जाता है वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो एलिमेंट्स है, उनके बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम नहीं होते, होमोजेनियस नहीं होते. फॉर एन एग्जांपल, सी सम एनिमल्स वेर हेल्दी, सम sickly, some white, some black, and so on, so that it was a problem of choice for the user. It was a question of selection and rejection. The white one is selected and the black one is rejected. Yes, that is a problem. क्योंकि homogeneous सेम जो नहीं है, एनिमल समवेयर हेल्दी, कुछ हेल्दी रहते हैं, कुछ sickly, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं. कभी कभी यूजर्स लोग वाइट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैक. इसके वजह से एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस में कई सारे प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी आते हैं. हेजी एंड अनसर्टेनिटी आर देयर in this exchange process. This is the first problem, because it depends upon the choice. You may don't like the black one, you may like the white one. Somebody may like the black one, somebody doesn't like the white one. Most of the user will like healthy one, and they try to exchange the process with healthy goat, but somebody may not, so that will be a problem. Exchange process is not be possible, isn't it? Secondly, during epidemic, goat die in large number, which would mean a sharp reduction in supply of money. God being money and money being God, the monetary system would then suffer from the shortage of money. हाँ, देखिए एनिमल्स, ये तो एक जीव है, बीमार तो होगा ही. जब भी बीमार पड़ते हैं, एपिडेमिक ऐसा सिचुएशन जब जिस बीमार के द्वारा सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने वाला, शायद मर भी जाए, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में. सो लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स डाई व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक, व्हेन देयर इज ए कैलामिटीज, व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम, इजंट इट? सो नेचुरल कैलामिटी जब वो गॉड्स कई सारे मरते हैं और बीमार होते हैं तो मरते हैं, तो इसके वजह से क्या है, मनी को, क्योंकि मनी यूज हो रहा है, गॉड इज बीइंग यूज्ड एज ए मनी, तो उस समय सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. ओके, बिकॉज गॉड बीइंग मनी एंड मनी बीइंग गॉड, उस समय मॉनेटरी सिस्टम क्या करता है, सफ़र करता है. उस समय क्या होता है मार्केट में, शॉर्टेज ऑफ मनी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल. होप यू हैव अंडरस्टूड. Again, during the breeding season, the number of goats would increase. Sorry. Wait a minute, okay. Breeding season में number of goats क्या हो जाता है, increase हो जाता है. Number of goats increase, which would mean the increase in the supply of money. तब supply of money मतलब God को जिस तरह हम यूज़ करते हैं तो उसका supply अगर बढ़ जाए तो supply of money definitely बढ़ जाएगा. ओके, लेकिन जब सप्लाई बढ़ जाएगा मनी का वैल्यू घट जाएगा. इससे आप क्या समझ रहे हो, सिंपली समझो. देखिए, अगर आज के ज़माने में इसको मैं अगर समझाने जाऊँ, देखिए अगर हर किसी के पास पैसा ही पैसा, सभी के पास पैसा ही पैसा है, सभी के पास, गरीब, धनी, मिडिल क्लास, एवरीबडी हैव मनी, एंड व्हाट हैपन इफ देयर इज ए कमोडिटी and this commodity can be affordable by everybody, तब वो commodity का प्राइस बढ़ जाएगा, उस चीज़ का प्राइस, उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा. अगर सप्लाई कम है, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा. अगर आप आज एक चीज़ खरीद रहे हैं 10 रुपये में, फिर कुछ सालों बाद उसी चीज़ को आप खरीद रहे हैं 30 रुपया में, अर्थात सभी के पास पैसा आ गया है और सभी खरीद पा रहे हैं, अर्थात वैल्यू ऑफ मनी घटा कि बढ़ा, घटा, क्योंकि जो चीज़ आप 10 रुपये में खरीदते हैं उसी चीज़ को आपको पाने के लिए 30 रुपया पे करना पड़ रहा है. जब सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगा, वैल्यू ऑफ मनी
गिरता है। लेकिन इसमें और एक चीज़ है जिसके बारे में इधर नहीं दिया गया है। अगर अगर सप्लाई या प्रोडक्शन ठीक रहे तब वैल्यू ऑफ मनी नहीं गिरता है, लेकिन सप्लाई ऑफ थिंग्स, सप्लाई ऑफ गुड्स अगर कम हो जाए तब किंतु उसका प्राइस बढ़ने के वजह से वैल्यू ऑफ मनी घटता है। ठीक है ना, जिसके बारे में इधर नहीं दिया गया, डिटेल में हम बाद में एनालिसिस करेंगे। इसको पढ़ते हैं फिर से। थर्डली, indivisibility is another limitation of animals because this problem the animal standard broke down। हाँ, और एक प्रॉब्लम जो पहले भी था, बार्टर सिस्टम में भी प्रॉब्लम था, इंडिविजुअली डिविजिबल नहीं है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम था। तो दैट इज अनदर व्हाट यू कैन से प्रॉब्लम ऑफ व्हाट second stage, that is the animal standard। okay, and now the third stage is the evolution of money in the metallic standard। हाँ, इस समय मेटल का भी यूज किया गया, मनी को मेटल के रूप पे देखा गया। ओके, तो क्या यूज किया जाता था? गोल्ड एंड सिल्वर were used as money, gold and silver were used as money, and gold and silver are valuable metals at that point of time, very valuable metal, and still now they are valuable metal and they are used as a medium of exchange। गोल्ड एंड सिल्वर को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के प्रोसेस में यूज किया जाता है, एज ए मनी यूज किया जाता है, जाता था। ओके, बट इसी में भी एक प्रॉब्लम था। एवरी टाइम देयर वाज अ ट्रांजेक्शन इट वाज नेसेसरी टू ascertain whether it was a real gold और रियल सिल्वर और फेक गोल्ड और फेक सिल्वर। हाँ, ये एक प्रॉब्लम था, मतलब ऑथेंटिसिटी, मतलब सही में वो रियल है ना फेक है, इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, कोई ऐसा एक टेक्नोलॉजी तो था नहीं जिसके द्वारा हम पता कर सकें कि गोल्ड असली है ना सिल्वर असली है ना फेक है। तो इसी के वजह से कई सारे ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आते थे, क्योंकि ये मतलब पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता था कि गोल्ड रियल है ना, सिल्वर रियल है ना फेक है। दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सेकेंडली, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ टू कैरी वैल्यूएबल मेटल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। हाँ, ये एक वैल्यूएबल मेटल्स है, गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यूएबल मेटल, इसको एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह कैरी करते रहना, हर वक्त कैरी करना, ये एक तो प्रॉब्लम तो है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम द फोर्थ स्टेज इवॉल्व एंड द फोर्थ स्टेज वाज व्हाट? कॉइनेज। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर्थ स्टेज का जन्म हुआ या फोर्थ स्टेज आया, जिसको हम कॉइनेज बोलते हैं। अब कॉइनेज क्या? सिंपली थर्ड स्टेज को थोड़ा सा क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। यहाँ में गोल्ड एंड सिल्वर का कॉइन्स यूज करने लगा, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड। ओके, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम था, but the problem was the inelasticity supply of metal। inelasticity supply of metal means क्या? जब गोल्ड एंड सिल्वर का सप्लाई ज़्यादा होगा तब मार्केट में कॉइन ज़्यादा होंगे, जब गोल्ड एंड सप्लाई कम होगा तब मार्केट में कॉइन्स भी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी कम होंगे। if there is a reduction or if there is not too much supply of gold and silver, that means it was not possible to increase the number of coins, it is not possible। okay, so increase of supply unless there was an increase in supply of gold and silver, it was not possible to increase the number of coins। मतलब अगर गोल्ड एंड सप्लाई अच्छा से ना हो, सप्लाई नहीं रहा तो कॉइन्स भी नहीं रहेंगे, that is a problem, that is called inelasticity supply of metal। Secondly, as trade and commerce began to spread far and wide, it became inconvenient to carry large amount of such coin from one place to another। हाँ, बल्कि भी होता है। देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स उस समय बिजनेस, उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स एक दूसरे के साथ, कंट्री के साथ जब हो रहा था, एक रीजन से दूसरे रीजन के साथ, तो कई दूर दूर होते थे रीजन्स लोग, तो हर जगह को इसमें कैरी करना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि बल्कि भी था, हैवी भी था। कॉइन्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ कॉइन्स को कैरी करते रहना एक प्लेस से अनदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, it is also a problem। so that is the some problem in the fourth stage, and because of this problem also there is another stage come, that is the
paper money. That is the fifth stage of evolution of money. That is the paper money. Okay, that is the fifth stage. आज के ज़माने का मनी को भी हम पेपर मनी बोलते हैं, लेकिन पेपर मनी also have two stages. Paper money also have two stages. Okay, in one stage पेपर मनी वॉज कन्वर्टेबल इंटू गोल्ड एंड सिल्वर. पहला स्टेज में पेपर मनी को किस तरह यूज़ किया जाता था? कन्वर्टेबल फॉर्म में यूज़ किया जाता था, गोल्ड एंड सिल्वर और ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू. इट वाज देन कन्वर्टेबल और रिप्रेजेंटिंग गोल्ड एंड सिल्वर. मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में आपको रखना है तो रख सकते हैं, इसको आप पेपर मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्टेबल है. ठीक है ना, आज भी कन्वर्टेबल है. नहीं, ऐसा नहीं कि आज कन्वर्टेबल. आप पैसा के बदले आपके पास पैसा है, आप कुछ गोल्ड खरीद के रख दीजिए, इसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है ना. इट वाज देन कन्वर्टेबल और रिप्रेजेंटिंग गोल्ड एंड सिल्वर. मतलब उस टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर को रिप्रेजेंट करते थे. ये कन्वर्टेबल थे. किसके फॉर्म में कन्वर्टेबल? इनटू गोल्ड और सिल्वर. ओके, सेकेंड स्टेज में क्या हो? पेपर मनी को कन्वर्ट करने का जरूरी नहीं है. पेपर मनी को एक्सचेंज प्रोसेस में कन्वर्ट करने का जरूरी नहीं है. पहले तो कन्वर्ट करना पड़ता था किसमें? गोल्ड एंड सिल्वर में. उसके बाद एक्सचेंज प्रोसेस होगा. लेकिन सेकेंड स्टेज में पेपर मनी को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया गया एज ए मनी, डायरेक्टली एक्सेप्टेड एज ए मनी इन द सेकेंड स्टेज. पहला स्टेज में आपको समझ में आ गया होगा, पेपर मनी तो था लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ता था गोल्ड और सिल्वर में, और उसी तरह का इक्विवेलेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता था. उसके बाद एक्सचेंज प्रोसेस होता था. लेकिन सेकेंड स्टेज में पेपर मनी को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया गया एज ए मनी. Okay, so it was no longer a claim against gold or silver. Hope you have understood. It was no longer a claim against gold or silver. This money, paper money is inconvertible और नॉन रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. जो पहला जो मनी था फर्स्ट स्टेज में, उसको कन्वर्टेबल मनी बोलते थे, या रिप्रेजेंटेटिव. किसको रिप्रेजेंट करता था? गोल्ड एंड सिल्वर को रिप्रेजेंट करता था. और किस रूप में कन्वर्ट होता था? गोल्ड एंड सिल्वर रूप में कन्वर्ट होता था. ठीक है. सेकेंड स्टेज में जो मनी आया, पेपर मनी, वो उसको पेपर मनी को ही डायरेक्टली एक्सेप्ट किया गया एज ए मनी. इसलिए ये मतलब ये पेपर मनी इनकन्वर्टेबल मनी इसको बोला गया है, या नॉन रिप्रेजेंटेटिव. किसको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद ही मनी है. एंड टुडेज पेपर मनी कम अंडर दिस कैटेगरी. टुडेज पेपर मनी कम अंडर दिस कैटेगरी. इट इज इनकन्वर्टेबल, इट इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. होप यू हैव अंडरस्टूड. सिमिलरली आज के ज़माने में चेक का यूज़ किया जाता है. चेक का यूज़ किया जाता है. डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ किया जाता है. बट चेक इज़ नॉट मनी. चेक मनी नहीं है. एंड सिमिलरली डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो नॉट मनी. इट इज कन्वर्टेड बट इट इज नॉट मनी. बिकॉज अगर आप बोले किसी दुकान पे जाइए, आप बोले मुझे ये चाहिए, मैं चेक दे रहा हूँ, शायद वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना बने. Not acceptable as a medium of exchange. Similarly in case of credit card and debit card, आप बोले मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ये रख लीजिए, मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ. हाँ, आजकल के ज़माने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा आप काट सकते हैं, वो अलग बात है. लेकिन डायरेक्टली मीडियम ऑफ एक्सचेंज में नहीं पकड़ा जाता है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आजकल सिर्फ मनी को, नॉर्मल मनी, दैट रुपया, पैसा को ही मतलब डायरेक्टली मीडियम ऑफ एक्सचेंज में पकड़ा जाता है. बिकॉज ये किसी भी फॉर्म को ले लेते हैं, किसी भी शेप में ये पकड़ लेते हैं, किसी भी शेप में ये घुस जाते हैं, किसी भी फॉर्म में इसको आप यूज़ किया जा सकता है या यूज़ करते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट ऑल्सो. 1.3. So for today we are stopping here. We'll further analysis 1.4 in my next class. See already video become too long. और अगर आगे जाऊँ तो और ज़्यादा मतलब वीडियो बड़ा होते जाएगा, जिसके वजह से आप लोग को अगर मैं तो पढ़ाने में पढ़ा दूंगा, लेकिन कई सारी चीज़ एक ही वीडियो में याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, आप लोग के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. इसलिए विल गो इन 3 पार्ट. ओके, 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे. होप आज का पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा. यू हैव अंडरस्टूड. एंड इफ़ आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, देन लाइक शेयर तो बनता है, आप कर दीजिएगा. एंड होप you will share this video as much as you can. Thank you. सबके শুভ ৰাত্ৰি আৰু সবৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ.